Hi students, in this video I am going to explain one topic of creative and critical thinking, and the topic that I have taken is mutualism. This topic I have taken from chapter number 1 of class 7 science named nutrition in plants. This topic of creative and critical thinking should not be related to the class, because science is a cosmopolitan subject, and this is what I deeply feel, that it is very beneficial for students of class 7 to 10th. All should watch this video and get benefited. So let us start with the context. Mutualism is a win-win relationship between two organisms who exchange something different of the value with one another so that both can live well. And reinforcing feedback loops keep the relationship positive over the time. And this type of relationship is applicable, is optimal, because it takes less energy to participate in and provides ongoing benefit to both the partners. So as we cultivate the relationship in the workplace and elsewhere, it will behove us to focus on cooperation, mutually beneficial exchange, and tight feedback loops, instant and effective communication, so that we adjust to change in our context. And we can practice applying the really golden rule in the nature. When disturbances and stressors increase, mutualism also increases. How might we cooperate and help each other more when time gets more difficult? This is the question, you should introspect about. Mutualism abound in a redwood grove we visited, including Bat Cave, where redwood tree provides a home for the bat, which in turn fertilize the tree with their pop. Pop means the waste released from the body of bat. And mushrooms such as mycorrhiza and mycelia also provide nutrients in the form of nitrogen to trees in exchange for food. And example, deep patterns in nature and derive design principles that would guide our solution building. And one of the life's principle in biomimicry is called adapt to changing conditions. And this includes incorporating diversity, maintaining integrity, and building resilience to preserve the function of our design or solution as context changes. An example of resilience means flexibility, experienced was pretending to birds. Our simple rules were stay equidistant from one another, fly into the wind, disperse as needed, and then return to formation as the last rule. Follow these rules. And we learned that following one of us was flawed, as we would make same mistake as the person we were following, and changing the rule we discovered could change our configurations, sometimes dramatically. So प्यारे बच्चों, इस कंटेक्स्ट में कुछ टफ इंग्लिश जो है आपको लग रही होगी, इसमें वही म्यूचुअलिज्म की बातों को घुमा फिरा कर कहा गया है कि म्यूचुअलिज्म है, यहाँ पे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात हो रही है। इसमें दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में बहुत ही जो है फ़ायदे का जो इनके आपस में जो है एक रिलेशनशिप होता है, वो चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं जो दोनों के ही जीवन को बेहतर बनाती है। ओके, और इस तरह की जो ये रिलेशनशिप बनाते हैं, इसमें इनको एफर्ट्स कम लगते हैं, और दोनों ही जो पार्टी होती है, दोनों ही जो पार्टनर्स होते हैं, उनको फ़ायदा होता है। और ऐसा एक इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं वर्क प्लेस में, जहाँ पर सारे कलीग्स जो हैं आपस में मिल करके म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हुए काम करते हैं।
तो इससे हमें एक गोल्डन रूल, जो हमारी प्रकृति का एक जो सिद्धांत है, उसका भी पता लगता है कि जब भी मुसीबतें आती हैं, परेशानियों आती हैं, तो हमें आपस में सहयोग की जो भावना बढ़ती है। हम देखते हैं कि जब कोरोना काल आया तो फिर कैसे लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की, चाहे वो डोनेशन से हो, चाहे वो एक दूसरे को जो है आर्थिक मदद दे करके हो। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी जो है देखा कि मानवीय संवेदनाएं पैदा हुई। हाउ माइट वी कोऑपरेट एंड हेल्प ईच अदर मोर व्हेन टाइम गेट्स मोर डिफिकल्ट। तो ये एक आप जनरल सी चीज़ है बेटा, आप भी सोचिएगा इस बारे में। जब समय काफ़ी मुश्किल हो जाता है तो उस समय हम एक दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं। म्यूचुअलिज्म अबाउंड इन रेडवुड ग्रुव। तो ये जो म्यूचुअलिज्म है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, ये रेडवुड नामक एक ट्री के जो बीच में जो गैप होता है उसमें भी पाया जाता है। वहाँ पर चमगादड़ अपनी जो है छोटी सी गुफा बना लेते हैं और अब ये जो है उनका घर बन जाता है और रेडवुड ट्री उनको रहने के लिए घर देता है। और ये जो बैट्स होते हैं बदले में अपने बॉडी से जो इनका वेस्ट निकलता है उससे इस पेड़ को, रेडवुड ट्री को न्यूट्रिशन मिलता है, फर्टिलाइजेशन मिलती है। और कुछ मशरूम होते हैं जैसे माइकोराइजा एंड माइसीलिया, ये जिन पेड़ों पर ये मशरूम जो हैं ग्रो करते हैं, इनके ऊपर उनको ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और बदले में पेड़ इन्हें फूड देता है। मतलब कि फोटोसिंथेसिस में बनने वाला जो शुगर होता है वो जो है मशरूम इनसे प्राप्त करता है, इन पेड़ों से। तो इस तरीके से हम ये हमारे प्रकृति में ऐसे पैटर्न्स देखते हैं जिससे कि हमें एक सोच मिलती है, एक दृष्टि मिलती है कि हम कैसे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं आपस में मिलजुल कर रहकर। और वन ऑफ द बेसिक लाइफ प्रिंसिपल इन बायोमिमिक्री इज कॉल्ड अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशन। तो बायोमिमिक्री का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि हमें बदलते हुए परिवेश के हिसाब से खुद को बदलना है। और इसमें जो चीज़ें क्या क्या आती हैं अडेप्ट टू कंडीशन में, वो है कि इन कोऑपरेटिंग डाइवर्सिटी, बदलते हुए विविध जो हमारी जो स्थिति होती है उसको हमने अपने साथ इनकॉपरेट करना है। मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी एंड डेवलपिंग रेसिलियंस टू प्रिजर्व द फंक्शन ऑफ डिज़ाइन। तो रेसिलियंस का मतलब होता है फ्लैक्सिबिलिटी। जब भी स्थितियाँ बदलती हैं तो हमें फ्लैक्सिबल रहना चाहिए ताकि बदले हुए इन्वायरमेंट में हम खुद को ढाल सकें। ये हम देख सकते हैं पक्षियों में। तो पक्षियों के जो झुंड होते हैं उनका एक रूल है कि आपस में एक बराबर दूरी बना के रखेंगे, हवा में इकट्ठे उड़ेंगे, बीच में वो इधर से झुंड से निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर से वो अपना ग्रुप बना लेंगे, फॉर्मेशन बना लेंगे। इस तरीके से एक जो है उनका एक म्यूचुअली बेनिफिशियल जो एक बॉन्डिंग रहती है आपस में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो किसी एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते हैं जो खुद गलती कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि बाकी सभी भी गलती करेंगे। तो अब यहाँ पर ये पूरी सी बात की गई है कि चेंजिंग द रूल वी डिस्कवर्ड कुड चेंज अवर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि अगर हम नियमों को बदल दें तो ये हमारे पूरे ही जो एक सेटअप है हमारे जीवन का, ये उसको बदल सकता है। सपोज़ पक्षियों का झुंड जा रहा था, पक्षियों का आगे जो बैठा हुआ लीडर है, आपने देखा होगा जो क्रेन जो होती है ना, क्रेन ग्रुप में चलती है, ग्रुप में उड़ती है। अगर उसका लीडर गलत दिशा में चला जाए तो उसका ग्रुप भी सारी गलत दिशा में चला जाएगा। तो मतलब कि वो 7 ग्रुप में होते हुए भी उनका ग्रुप जो है वो एक अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा। तो बेटा इसमें बहुत सी बातें घुमा फिरा के कही गई हैं और सभी का एक ही मतलब है कि म्यूचुअलिज्म इज़ नथिंग बट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स they exchange something which is mutually beneficial for both of them. And now we are going to discuss the questions from this context. What is the role of biomimicry in
म्यूचुअलिज्म, तो बायोमिमिक्री का म्यूचुअलिज्म में क्या रिलेशन है? द गोल इज टू शेप ह्यूमन कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन एंड एक्शंस in such a way that mimic nature to create the conditions conducive to life. Next question is, how is mutualism a win-win situation for redwood and bat? तो रेडवुड और वैट के बीच में रिलेशन हमने अभी ऊपर कंटेक्स्ट में पढ़ा था कि रेडवुड ग्रूव इंक्लूड्स द बैट केव वेयर रेडवुड ट्री प्रोवाइड शेल्टर फॉर द बैट्स हु इन टर्न fertilize the trees with their pop. Question number 3. Give 2 example of mutualism except given in the above text. तो हमें म्यूचुअलिज्म के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, लेकिन हमें वो एग्जाम्पल देने हैं जो इस कंटेक्स्ट में मेंशन नहीं हैं। तो इस म्यूचुअलिज्म का एक एग्जाम्पल है लाइकन, जिसमें कि एल्गा और फंजाई आपस में म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन डेवलप करते हैं। एल्गा फोटोसिंथेसिस करके लाइकन को फूड प्रोवाइड करता है और लाइकन वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गा को। और दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं लेग्यूम प्लांट्स एंड राइजोबियम बैक्टीरिया में। राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करके नाइट्रेट सॉल्युबल फॉर्म में उस लेग्यूम प्लांट के रूट्स को प्रोवाइड करता है, जो उस प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और जो लेग्यूम प्लांट है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करता है रहने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ कैन बायोमिमिक्री हेल्प अस टू अडेप्ट टू न्यू कंडीशन? तो बायोमिमिक्री हमें नई कंडीशन में अडेप्ट करने में कैसे मदद कर सकती है? बाय लर्निंग पैटर्न्स इन नेचर एंड डिराइव डिजाइन प्रिंसिपल्स दैट वुड गाइड सॉल्यूशन बिल्डिंग. This is what we studied in this context. So, the last question, how algae and fungi are benefited by the phenomenon of mutualism? Fungi, rather we say fungi. So, fungi supplies water and mineral and alga prepares food and supply it to fungi. So, this is how algae and fungi are benefited by the phenomenon of mutualism. Hope you enjoyed this video, and till I develop my next video on CCT, I want you all to watch this video and take care of your health. Stay fit, stay fine. Best of studies. Thank you.